शुरू कीजिए, बोलिए हमें कि क्यों, क्या क्या हुआ था, क्या बताओ क्या हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, बोलो। आप बड़े टीज करते हो, देखिए। Now in 1997 Mama came up with the idea, Mama as in this Mama, that there is something happening in the Indian film industry that has happened before, और वो ये बात है कि सोशली रेलेवेंट कि आप ही के साथ बात हो रही है और दादू मुझसे हाथ पकड़ के ये कहानी बताने लगते हैं, whether he is here or not, है ना। तो उसी तरह से धरने के दादू हम जो देख रहे थे, और उफ, मतलब नॉट जस्ट द स्टोरी टेलिंग, जेंटल सटल एक्सपोजर से, बिकॉज एज अ सिनेमाटोग्राफर, क्योंकि आफ्टर स्टिल फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी से ही तो उन्होंने शुरू किया। यस, ओके, हाँ, ओके। शिल्पी बोस जी हमारे बीच में, कामिनी कौशल जी हैं जो शील It's a reunion of sorts, है ना? Yes. After how many years? How wonderful that we're all together as a family. Hi Varun, hi, good to see you. Exactly. आप गाना याद सबके साथ आपके साथ तो तस्वीरों को देख के पुरानी याद ऐसे नहीं है आप। Of course, all friends together. And speaking of friends, it's extremely important कि आप यहाँ हमारे साथ आज हैं। दादू There were many times when I told you that we're doing this thing today, I'm not going to have a dinner soon. Just take it. And he would have the trust and the feeling that I understood exactly what he wanted, and I've done it without any rehearsal, and he's kept the first shot. That is the regard. It was such an understated set of working. There was no aggression, there was no noise, there was complete involvement, and all the characters were in character, all of us. It was just a beautiful experience. We shot the scenes when we were supposed to be actually working, say if it's midday, then we shot the scene at midday. If it was night, we did it at night. And I still remember, I got dressed up and I put a big red tikka on my forehead. Ah, he says, yes, Virat was a very devoted wife. That is why you got such a big tikka. Please keep it on. So my tikka normally is, normally wear a small one like that. But then I was wearing right through the film. It was such a wonderful experience. I tell you, that made me grow up. I grew up during that event of filming Virat Babu. And I'm really honored that he chose me, and I must confess, Abhi, my co-star, where he would say, come on Kamini, why don't you go and tell Vimoda to take you here? Casting, you should go and talk to him. I said, listen, Abhi, it's very awkward for me, you know. I mean, if he really thinks I will do the job, he'll send word, you know. But I feel really self-conscious going and telling him, please cast me in this role. I'd love to do it, but then I went and he cast me in this role, and it's been the role of a lifetime. And I'm so happy I got the Filmfare Award for it, and I was, regarded as a good artist, and Vimola appreciated it.
And even today, I think it has a mood. And the one more thing I feel very interesting that none of the film was done in the Algorithm Mohan Studios. I was there. And the scenes were shot. तो देख के आज भी दिल करता मैं राम का रोल करूँ यही वाला Sharing this, we have a very special gift for you. If you please stand, both of you, we have a book that is written by Ma. And Ma is chairperson of Vimal Roy Memorial, honoring these two and Shilpi Bose. Thank you so much for coming. And just like, if you could please present that to us. Thank you, Niranjan bhai. Thank you, Niranjan bhai, so much. And Thank thank you, you bhai so much. Would you please like to say a few words, especially about your father? My father started Cine Society in 1969. We had a very big terrace. We used to get 16 mm projectors and screens. I don't know from where he used to get the films. And he was a very big devotee of New Theatres films. He wanted to name Cine Society as Friends of New Theatres, but K. Abbas Saab, that time was the president of Federation of Film Society, he said, no, you keep it as a general name, and it got changed to Cine Society. Our first chairman was Mr. Nitin Bose, followed by Fani Mazumdar Saab, and after that, has been, of course, associated with Vimalda was Nitin Babu's assistant as a cameraman. Then it was followed by Nausad Saab, and now we have Mr. Vinod Parekh as our present chairman, who's been very helpful. And I'm grateful to Rinki ji. We have been doing this relentlessly. Bharati Vidya Bhavan, Bimal Roy Foundation and Cine Society, and people are very happy with the film, quality of the films, everything. And I thank you all for being here. Thank you so much. Thank you so much. Would you please come forward? Come. We've got a chair there. हम धर्म जी से रिक्वेस्ट करेंगे, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र दादू, आपका बुलावा आया है just to the stage लेकर। আমরা কিন্তু গল্প করছিলাম and we were informing everybody कि আপনার association দাদুর সঙ্গে কি করে শুরু হলো। So we had a little story to share. I hope you heard it. Now Dharmendra Dadu, here we go. And this beautiful poster, who else could give? There we go. দেববাবু আপনাকে আমার বইটাও দেব it is very a big honor that you are still here, and I think you are the only person who has been with my father for so many years. And would you like to say something please about Baba or about something? तुम बोलो, मैं नहीं बोल सकता। आप पहले बोलो अब मैं क्या बताऊं? कुछ बोलिए ना क्या बोलूं? मुझे ये भी पता नहीं क्या बोलना चाहिए, इसीलिए मैं Any memories of my father, of working with him? I know I have documented all that you said about Baba, about Vimalra production in this book, so which is already there. मैं अगर बोलने जाऊँ बीच में भूल जाता हूँ। No problem, that's all right. और इसीलिए बिमलदा के पीछे ये बोल जितने बड़े जीनियस वो थे उससे कहीं बड़े उनके असिस्टेंट थे। They used to act like an genius. एक नहीं थे, 5-6 थे। मेरा जब स्पीड टेस्ट हुआ सही है। परेशान था मैं कि करूं किससे पूछूं। बिमलदा जैसे पीते हुए अपना खामोश तब इंसान, एक फरिश्ता सीरियस इंसान ऐसे गुजरते जा रहे थे प्रीव्यू थिएटर से मौज स्टूडियो में, और मैं परेशान था। सानेवाल से आया जाट, मेरा क्या होगा। तो किसी की तरफ देखो तो सब उनमें वो भी थे,
सॉरी। तो एक मुकुल दत्त थे, एक ये थे, इन्होंने मेरी परेशानी देखी चेहरे पे कि यार स्क्रीन टेस्ट है इसका, फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट की तरफ से आया है, दादा ने बंदनी में इसको लिया है। तो मेरा हाथ ऐसे दबा के मुस्कुरा कर कहने लगे, धर्मेंद्र दादा को काम पसंद है। मैंने कहा सच बोल रहे हो? कहता हाँ, मैं दादा को बहुत बहुत देर से जानता हूँ, दादा के चेहरे के एक्सप्रेशन मैं ही पढ़ सकता हूँ और कोई नहीं। तो तब से देवुदा के साथ मेरा खास प्यार है। मैं आज भी पूछा था कि देवुदा आ रहे हैं कि नहीं। एक बात भूल गया, तुम जब पहले दिन आए थे, मैं बोला विमलदा एक लड़का आया जो ही मैन लगता है मुझे। तो उसके पास बाहर उसको बोला, हाँ वो मैं बाहर निकल के देखता हूँ, है नहीं, निकल गया। गणपत करके थे, गणपत को बोले जाए, उसको बोला के ले आते जल्दी। गणपत पूरा माउंट स्टूडियो घूम करके उसको नहीं मिला। पर मीटिंग गणपत को अटेंडेंट, तो ये बात तुमको पता भी नहीं। नहीं, मुझे सब पता है, मुझे एहसास हो जाता है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। माउंट स्टूडियो में ये सब लोग मेरे अपने थे, और अब भी जब कभी उस जगह से गुजरता हूँ जहाँ कभी मोहन स्टूडियो करता था, मुझे तो मिलता ही नहीं मोहन स्टूडियो की तरह। वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। वहाँ वो स्टूडियो तो नहीं, लेकिन उस मिट्टी की का एक एक जर्रा मुझे उस वक्त के एक एक लम्हे को याद दिला जाता है। विमलदा एक बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है, आप साहब जानते हैं। बिमल रॉय, बिमलदा का नाम आते ही इंडस्ट्री के, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज सर झुका के कहते हैं वाह बिमलदा। तो बिमलदा से बड़ा कौन हो सकता है। और उन बिमलदा ने मुझे अपनी फिल्म के बंदनी के लिए सिलेक्ट किया। एक टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ 58 में, तब मुझे मौका लगा। अगर बिमलदा मुझे सिलेक्ट नहीं करते तो शायद मेरे ये अनहोने ख्वाब अधूरे रह जाते। दादा ने मुझे बड़े प्यार से, वो मुझे धर्मेंद्र कहते थे, और ये सब टोकते थे, नहीं दादा इनका नाम धर्मेंद्र है। बोले तो क्या हुआ, धर्मेंद्र ही तो बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, डार्लिंग फादर। देखिए मैं एक देहाती हूँ, मैं अपने जज्बात छुपा नहीं सकती। जिस दिन दादा गुजरे, सबसे ज्यादा मैं रो रहा था। आज भी उनकी याद आती है तो मन भर आता है। वो तो नहीं आएंगे, लेकिन उनको याद करके मैं अपने पुराने दिनों को, मेरी गोद में आ बैठते हैं, वो पुरानी यादें मुझे याद दिला देते हैं। उसी वजह से एक ये मेरी बहन है रिंकी, और आज उनके 50वें पुण्यतिथि के दिन पे आप सबको बुलाया है, और मैं आप सबके साथ उनके दुख सुख, उनकी उपलब्धियों को शेयर कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि बिमलदा जैसे लोग पैदा हों, इतने फरिश्ता सीरत, फरिश्ता सूरत, बहुत ही खामोश तबा, ऐसे इंसान आजकल नहीं है। आज ड्रामा बहुत हो गया है, आज बनावटीपन बहुत आ गया है। मैं बनावटी नहीं हो सकता, इसलिए ना मेरे बेटे हो सकते ना मैं हो सकता हूँ, लेकिन हम फिर भी उन जज्बात की बिना पे चल रहे हैं। वो गांव के जज्बात चलते हैं, जज्बात ही जीतते हैं। मैं जज्बाती हूँ, इसलिए शायद 55 साल से मैं चलता आ रहा हूँ और चलता रहूँगा, क्योंकि जज्बात मेरी नेचर है, मेरी खसलत है, इनसे मैं निकल नहीं सकता है। आप समझते हैं जज्बात क्या होते हैं। देवुदा के साथ आज बैठे ऐसे लग रहा है कि मैं मोहन स्टूडियो में हूँ। मेरा जब स्क्रीन टेस्ट हुआ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? मैं आपको एक बहुत खास मैं बाद में बोलूँगा। नहीं, मैं आपको एक बहुत खास बात बताना
and you're remembering the fact that Mohan Studios is not there anymore. The house in which Dadu lived on Mount Mary is not there anymore. Yeah. But last night, 12 o'clock, we have got the announcement. Bimal Roy Chowk is going to be there. It has been announced. My mother has been working for it for 15 years. मैं एक चीज कहूंगा, ये जो मेरी ग्रैंड डॉटर कह रही हैं, ये सब मसनूई बातें हैं। किसके नाम पे सड़क रख दी जाती है, किसी के नाम पे वो लिख दिया जाता है, लेकिन वो याद तो रहेगा, याद रहेगा किसको? क्योंकि वो घर नहीं है। नहीं, वो घर नहीं है बेटे, वो कुछ नहीं है, नहीं रहता। दिस इज ऑल, ये आने जाने वाली चीजें हैं। याद वही रहता है मेरे ख्याल से जिसका हवा जिक्र करती है, जिसका जमाना जिक्र करता है, वही बातें याद रहती है। ये सड़कों पे धूल पत्थर, अभी साहिर लुधियानवी साहब के नाम पे एक सड़क बनी थी, उसका पत्थर भी टूट गया। कौन याद करता है? What we are today, we will be remembered. Let's make the today the most beautiful. मैं कोई बहुत बड़ा वो ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, ना कोई फिलोसफर हूँ। मैं सीधा साधा एक जाट हूँ, यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की बात मुझे आती नहीं। आज मैं यहाँ आया हूँ ये बेटी के कहने से, मुझे नहीं मालूम, मेरी एक ग्रैंड डॉटर भी आई हुई है। और आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। मैं अभी बैठा था तो तरुण बोस की बातें चली। हम लोग कभी कभी ठर्रा पीने चले जाते थे जरूर। मैं बहुत सीधा सिंपल आदमी हूँ। पास्कल के अड्डे पे उनसे मुलाकात होती थी तो कभी वो पेमेंट कर देते थे, कभी मैं। जब मुझे बंदने के लिए साइन किया गया तो ये सब लोग, जैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़े गया, हाँ दादा, मैं तो वहां पहुंचा। क्या नाम उनके अटेंडेंट, छोटे क्या नाम था? गणपत। हाँ गणपत। तो एक छोटे से गणपत थे। वो आया कि आपको दादा बुला रहे हैं। मैंने कहा दादा बुला रहे हैं, तो अंदर से ये था कि धक 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 धक, ये उनको पसंद है कि नहीं मेरा स्क्रीन टेस्ट। तो मैंने कहा अच्छा आ रहा हूँ। अंदर में गया, उन्होंने टिफिन खोला, बोली ने ये माछ भेजी है तुम्हारे लिए। तो कुछ लगा यार, ये भाभी ने मछली भेजी है तो कुछ बात बन रही है। मछली प्लेट में रखी गई, मैं खुशी से मछली भी नहीं खा रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत खामोश तवा थे दादा। कहने लगे धर्मेंद्र तुम बॉन्धनी में काम कर रहे हो। और फिर खुशी से वो नीचे निकाल रही थी। उसके बाद मुझे एक चेक दिया गया बैंक ऑफ इंडिया का, अंधेरी बैंक ऑफ इंडिया में। वो चेक में लेके बस में से भागा कि कुछ पैसे मिलेंगे आज। पता नहीं, छोटा सा चेक था तो वो क्रॉस चेक था। वो बैंक वाले कहने लगे कि कौन से अकाउंट में आपका ये चेक डाला जाए? साहब कौन से अकाउंट, मेरा तो कोई अकाउंट नहीं। तो कहते फिर मैं क्या करूं? बोले बेरर चेक लाओ। फिर मैं भागा बस में, फिर बेरर चेक लाया, फिर पैसे मिले। इस तरह से जिंदगी शुरू की है। और ये मेहनत मशक्कत जो मैं कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा। ये भी मेरी शक्ति है। और आप लोगों का प्यार मेरी शक्ति है, जो पिछले 55 साल से मुझे बदस्तूर मिल रहा है। वरना आज तक मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। आज ये आप सबकी बदौलत है। मैं आपका एहसानमंद हूँ या आपका क्या हूँ मुझे नहीं मालूम। आपका ये प्यार मैं पाता रहूँगा और इसी तरह चलता रहूँगा। और दादा को मैं कभी भूल नहीं सकूँगा। अगर दादा नहीं हो, तो मैंने पहले भी कहा है, तो शायद मेरे ये अनहोने ख्वाब अधूरे ही रह जाते। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बोर किया मैंने आपको। लेकिन आप ख्वाब की बात कर रहे हो तो ख्वाबों की एक परी हमारे साथ है। ख्वाबों की परियां कहाँ हैं जी? जल्दी आ बताओ। रही है, ख्वाबों की परी आ रही है। हेलेन जी को हम बुलाना चाहेंगे। हेलेन जी
और साथ में सरोज खान आई हैं, ये मेरी भाभी एनर्जी का हैं। अवार्ड देंगी। महान जी, And we have someone extremely special who is going to give you the award, and we want to hear from you as well. So please, Saroj ji. सरोज जी, और मैं बुलाना चाहूंगी वाइस प्रेसिडेंट SBI मिस भट्टाचार्य जी से, वो आए, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए। I love you, Saroj. I love you. I love you the most. You're my inspiration. We all inspired each other. Thank you so much. It's been wonderful. I request Maithili All ji, you wonderful people. And I don't have to say much. Dharminder ji has said everything. So thank you once again, Rinki ji. Thank you. हेलन जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा। जब मैं फिल्मों में नहीं आया था तो इनके बगैर, इनकी डांस के बगैर फिल्म अधूरी होती थी। अगर हेलन नहीं है तो फिल्म का मतलब नहीं है। तो मेरा एक दोस्त पास आने वाला है, कहने लगा धर्म जब जाओ हेलन जी को एक जप्फी डाल देना। मैं लोग के पत्थर जूते दिलाएगा तो मैंने उसे जिक्र किया तो वो मुस्कुरा दी, उस मुस्कुराहट में एक जफ्फी मिल गई। एंड रियली आई कैन से द होल इंडस्ट्री इज प्राउड ऑफ हेलन, देयर कैन नेवर बी अनदर हेलन। This is Mrs. Bhattacharya. वाइस प्रेसिडेंट SBI। Yes, we were hearing the story about Bank of India. We have a representative from State Bank of India, without whom this evening would not be possible. The whole retrospective would not be possible. Thank you. Grace and joy enthralling us. Viva par excellence. Now there is a voice par excellence who we adore. He is known as the voice of India. Any guesses? Amin Sayani. Absolutely. We have Amin ji with us, and we have chosen him for this wonderful award as well. अभी आप बताइए। Thank you. ये जो सरोज खान है ना, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ का जोर लगाया, लेकिन मैं डांस नहीं सीख पाया। बहुत सिखला पहले फिल्म मेरा हम भी तेरा में नहीं थी यार, मैं भाग जाता था जब डांस की शूटिंग होती थी। उन्हें सब ना तुम 1 2 3 4 मैं कहाँ गया, ऐसे मुझे नहीं आता, मैं वो नहीं हूँ। लेकिन क्या इन्होंने कहा तक पहुंची, क्या मकाम पाया है, ये सरोज खान में पैदा नहीं हो सकती। अच्छा, आप सरोज जी प्लीज बताइए कि आपका दादू के साथ कनेक्शन क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो सब बैठे हैं कल नहीं थे। आप जब फिल्म फेयर से भागी हुई यहाँ आई, आप फिल्म फेयर अवार्ड्स छोड़ के हमारे पास आई थी, क्यों? क्यों बता दीजिए। ये बनावटी अवार्ड इसलिए आई थी, ये दिल की बात हो रही है यहाँ वो बातें नहीं है वहाँ हो रही है। वहाँ मैं चाहता तो 1 इंच किसी को आगे नहीं जाने देता, but I don't have a shoe brain and I don't want to have a shoe brain. लोग anyway ज़्यादा बात नहीं करूँ। सरोज जी, गुस्सा बहुत आता है। अमीन जी has arrived, but आप जरा जल्दी से कनेक्शन। Hi अमीन जी। आप सरोज। कनेक्शन बता दीजिए जल्दी, सब जानना चाह रहे हैं। मधुमती में मैं बहुत छोटी थी और मास्टर जी ने मेरा डांस देखा था, तो उन्होंने बिमल जी से कहा क्या मैं इसे रख सकता हूँ, तो उन्होंने कहा आर्ट में एज काउंट नहीं करती, प्लीज गो अहेड। So she was dancing in Madhumati. Which song was that? Please can you tell us? जुल्मी संग आंख लड़ी। Julmi Sang Aankh Ladi. Exactly. Now this is a discovery. Every time we see Dadu's films, गुनगुना दो सरोज, हल्का से गुनगुना दो। now Amin ji, you're here. अरे Lovely auntie. आप भी यहाँ हैं तो बोलिए ना। अमीन सयानी, Amin Sayani ji and Maithili
auntie is going to read out the citation from the Bimal Roy Memorial Committee. As you can see, आज झूम रहा है मन बहुत ज़्यादा ये सोच कर के आज ये फंक्शन हमारे प्यारे महान डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिमल रॉय का फंक्शन है। और मैं पहले तो नमस्ते कह दूँ उन सब बड़े बड़ों को जो यहाँ आए हुए हैं, कामनी कौशल जी, हेलन जी और छोटे भैया गरम धर्म। इसलिए छोटे भैया भी लगते हैं मुझसे पर करीब 20 साल छोटे, क्या करूँ, वैसे हैं मुझसे बड़े थोड़े, है ना। आज बात यह है बहनों भाइयों कि अगर माइक्रोफोन दिया जाता है किसी रेडियो वालों को तो वो बोलना शुरू करता है तो बंद नहीं करेगा। और आज बहुत देर हो गई है, तो मेरी भी उम्र का तकाजा है, मेरा तबीयत में गड़बड़ है, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ में लिख कर लाया हूँ और वो भी अंग्रेजी में वो मैं पढ़ूँगा। और वो यूँ है कि फ्रेंड्स, Bimal Da, as you all know, was one of the most fabulous, most heartwarming figures of the film world. His films also reflected his own personality, graceful, emotional, sophisticated and alluring, and sometimes even so stirring. I had the pleasure of coming a little close to him every time I was chosen to do the radio publicity of his films, and apart from his magnificent handling of the direction, I was deeply impressed with all the aspects of filmmaking that he so ably molded and put together. He हर चीज़ हर अमीर सानी साहब को अवार्ड दे रहे हैं सिने सोसाइटी की चेयरपर्सन विनोद पारेख जी। नहीं, मैं उधर जाता हूँ। रीगल के पास इनका स्टूडियो था, पहला इंटरव्यू मैंने वहीं दिया था, बड़ा झिझकते लेकिन उन्हें हौसला दिया था। आज पहली बार जब मैंने रावण को देखा तो मैं जरा घबरा सा गया और चौंक सा गया कि ये धर्मेंद्र के छोटे भाई तो नहीं लगते। वाह 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 साहब, मैं आपका बहुत फैन हूँ शुरू के ज़माने से, और इतना फैन हूँ कि बस कह नहीं सकता। आप सब ने इतना प्यार, इतनी दुआएं क्यों दी मुझे, उसी का फल है जो मैं हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। So please put your hands together for this wonderful youth who is carrying on a wonderful tradition and legacy. You know, मैं लखनऊ में पैदा हुई, I lived all my life there, और you know, late 70s में, early 80s में वो माहौल नहीं था, और अब पता नहीं कितना बदला है कि लड़कियां पिक्चर देखने जाएं सिनेमा हॉल में, एक पिक्चर हॉल हैं अच्छे में फेयर वगैरह, पर अच्छे घर की लड़कियां पिक्चर देखने नहीं जाती थी। तो हमारी जितनी भी अपब्रिंगिंग थी, जितना भी जो भी माहौल था घर का, वो यही था कि जो घर में आए, जो अच्छी देखने लायक पिक्चर है वही देखो, बस उसके अलावा टीवी नहीं चलेगा। टीवी भी 1979 में आया हमारे घर में, तो ब्लैक एंड वाइट एरा, ये जो ये सारी फिल्में हैं, ये यही देख के बड़े हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम इन पिक्चरों में ऐसा क्या था। बंदनी, मतलब आई थिंक आई वॉज 8 or 9 years old, या मे बी उससे भी छोटे थे जब देखी थी, तब भी रोना आता था देख के। 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में 2 बीघा जमीन देख कर भी रोए थे। और बलराज सानी का वो जो रिक्शा पुलिंग शॉट है, ऐसा लग रहा था जैसे शायद ये मेरे फादर ही हैं, क्योंकि
I'm sorry, I'm getting too emotional about it because I think I've just grown up on all these films. No, I completely understand because having But- grown up as a granddaughter, I know, and completely. missing the man who Yeah. made this, but the fact is that you are here today carrying on that legacy. So thank you. You know, it is so beautiful. एक लाइफ रोज की है जो हम लीड कर रहे हैं और एक होता है आफ्टर थॉट जब समझ में आता है रिश्ते समझ में आते हैं लोग समझ में आते हैं पेरेंट्स क्या है समझ में आता है हस्बैंड वाइफ बच्चे ये सारी पिक्चरें वो एक आफ्टर थॉट है दे आर नॉट लाइक दे आर दैट आफ्टर थॉट विच टीच यू अबाउट लाइफ एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट they allowed me only these films and few other films like these and Bimalda is guru in some way. Thank you so much, and it will hopefully make you feel slightly less alone in this thought, because having grown up in these households, we were also not allowed, because there was an idea that you had to grow up pure and understand realism through life. Exactly. So thank you. I'm grateful. I'm honored. We are honored that you're carrying on the tradition. Thank you, Juhi Chaturvedi. Thank you. The wonderful, fresh first debut director for Masaan. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Here, Neeraj, here, hand that over. It's a heavy thing. Don't worry. Keep the book. Please, Neeraj, your thoughts. I'm so overwhelmed right now actually. मैं अपने आप को बहुत 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 छोटा महसूस कर रहा हूँ ये मंच शेयर करना भी, क्योंकि विमलता की जो फिल्में हैं मैं बचपन में जैसे जूही ने बताया कि सेम माहौल था घर पे भी कि मम्मी पापा बहुत देखते थे, हम लोग सारे फिल्में देखते थे। तब शायद मुझ में वो समझ नहीं थी, मुझे शायद वो अकल नहीं थी टू अप्रिशिएट इट। और कुछ जब फिल्म देखने का सिलसिला जब शुरू हुआ, जब कायदे से फिल्में देखी, तब बंदनी, सुजाता, ये सारी फिल्में देखी, तब बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरे सबकॉन्शियस में बहुत असर पड़ गया। क्योंकि अभी जब मैं अपनी खुद की फिल्म मसान जब मैं अभी धीरे धीरे कुरेदता हूँ और उनकी रूट्स को देखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि ये कितना हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गई थी। जैसे अभी मुझे समझ में आता है कि मसान में जो किरदार है देवी का, वो बहुत कुछ बंदनी की कल्याणी की तरह है, उसी की इंडिपेंडेंट स्पिरिट की तरह है, उसी की एक फियरलेस होना और एट द सेम टाइम कॉय होना, उसी की तरह एक कहीं एक एस्केप की भावना और एक पोएट्री के लिए एक जो प्यार जो वरुण में बहुत हाँ One of the names on the list of Yeah. options for the film. Yes, Before it was I was- called Masaan. I was going to say that. Yeah, so ये था। और फिर हम दोनों उस फिल्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, मैं वरुण। जब भी इस फिल्म का सफ़र जब शुरू हुआ था तब से हम लोग बंदनी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो हम लोगों ने नाम के लिए ऑप्शंस बहुत सारे चूज़ कर रहे थे। हम दोनों ने एक नाम चूज़ किया था ले चल पार, क्योंकि हम लोग का वो बहुत बहुत फेवरेट गाना है। मतलब अभी भी मैं सुनता हूँ तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड यू नो टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट इन वट एवर कैपेसिटी, आई मीन I feel so little to stand here and even talk about, I mean, have my name associated anywhere with Vimalda is such a huge honor. I cannot explain in words. And I'm feeling so sad that I couldn't get my parents here. I mean, they were here and I couldn't calculate the time, and I wish they were here. They would have been so happy to have witnessed Dharmendra ji being here, Dinky ji presenting these awards to me, and I'm super happy. Thank you so much for this honor. Thank you, Varun. Thank you, Varun. Thank you, Neeraj, for creating Masaan, for carrying on a tradition. And really, we are deeply thankful that it continues in the contemporary Indian, cinema today, even today. Now, finally. Vimalda Memorial and Film Society honors Sri Dharmendra for imbuing the action hero with endearing sensitivity and infectious comic zest to reveal the complete actor under the superstar image. Now we're going to dim the lights. 1 second.
Kamlesh to present something of big surprise for Anandji. To me, no surprise, because it's a communal function. I love you all. This love is biggest surprise for me. No, this is a really special surprise that has, it's a very recent discovery. धर्मेंद्र दादू, I promise you, ये आपके दिल को खुश कर देगा. अभी मैंने जिक्र किया कि धर्मेंद्र ही मैन, बंदनी में कौन सा ही मैन था मैं? वही तो. मैं किसी स्कूल से एक्टिंग सीख के भी नहीं आया था. जब मुझे कई लोगों ने कहा यार इसमें अंडर प्ले किया तुमने, इस कमबख्त को अंडर प्ले भी नहीं मालूम था क्या होता है. तो खैर वहां से पता चला ये अंडर प्ले होता है, ये ओवर प्ले होता है. इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर एग्जैक्टली. विमल दा ने कहा मैं कुछ इस ढंग से लिया, कुछ पता नहीं चला. Now you wanted to have a photograph of yourself with my father. Yeah. That was your biggest thing. Now here it My biggest. We have recently discovered this working still from Bandhani. Oh my And we God. are I love it. अगर ये नहीं मुझे देते तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में कभी नहीं आता. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. 2 मिनट आपका. मैं पूछ रहा हूँ झूठ बोलो, कहते नहीं अभी नहीं. सर एक सवाल है. जी जी. ये आपकी जो वर्ल्ड में मोस्ट हैंडसम पीपल के नाम आया था टाइम मैगजीन, दैट वाज आफ्टर दिस और बिफोर दिस? मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे क्या गया, कहा गया, क्या गया, नहीं कहा गया. मैं बस चलता आ रहा हूँ. बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा. किसी ने कहा हैंडसम, किसी ने ही मैन, किसी ने गरम गरम, किसी ने कैसे नहीं बोला. लेकिन मैं धर्मेंद्र ही रहा हूँ. वही देहाती धर्मेंद्र आज भी, और वही मेरी शक्ति है. मैं उस मिट्टी से जुड़ा हूँ, मेरी जड़ें वहाँ हैं. इसलिए जो भी हूँ उस मिट्टी की वजह से. आपकी उम्र तकरीबन इतनी 80 प्लस है. अभी आपकी बर्थडे गई, रिलेटेड हैप्पी बर्थडे. फिर भी आपका जज्बा 18 साल तक क्योंकि आप सब इतना प्यार देते हैं मुझे, वो मेरे दिल को, मेरी रूह को सींचता है, और वो मेरे चेहरे पे आ जाता है. मोहब्बत आपकी न देती रोशनी मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम. ये उम्र थी लाखों चाहते बन के दुआएं लगी बरसने. मैं बस चलता गया, चलता गया, चलता गया. Also the Gubban Roy family. Thank you so much. Now I'm sure we would love to see the Ji. आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मिल रहा है. तो जिस इंसान ने मुझे इस इंडस्ट्री में दाखिला दिया है, उन्हीं के नाम का अवार्ड मुझे मिल रहा है. आई एम ग्रेटफुल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. We're just going to dim the lights and see the audio visuals. मैम आज आपको विमल रॉय जी का अवार्ड मिला है, क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला. It's because of Vimalda. If I hadn't done Biraj Bahu, maybe I wouldn't have got the award ever. But I'm very proud and very happy that he appreciated my work and it was well liked by the audience. And काफ़ी लोग आज जमा हुए थे फिल्मी दुनिया से. धर्मेंद्र जी थी, धर्मेंद्र सर थे, और काफ़ी लोग थे. मतलब सबको देख के एक अपनापन ऐसा महसूस हो रहा था. कुछ
Vimalda had a lovely, temperament. He was mild, quiet, and a very genteel human being. And to get work out of his artists, he knew exactly how to handle them. So many times it used to happen that he'd ask me, we are doing that particular scene today, Kamini. I said, yeah, fine, Vimalda. फिर मैं उनसे quietly पूछती थी, Vimalda, बिना rehearsal के ले? He said, yes, you know what I need. And I would do the shot, and he would keep the first take. That is the deep kind of understanding we both had with each other whilst working. He was a fine, fine man. And so was Debuda. Working with that unit has brought back so many memories. That era, that, that period of the century will remain forever fresh and very special because of the contribution they have made. That's what I feel. सब चालू बता देना. Rolling है. So how you feel when you get such a prestigious award, a Vimal Rai prestigious award? See, this is beyond prestige or beyond anything, because this is, like I said, I feel so little to actually take this award, because his films have been an inspiration for making my film. And if anybody's followed Masaan closely, you will see the roots of Bandini in it. And to receive this award here in the presence of all his family is the greatest honor, I think. I'm truly, truly overwhelmed by it. Which Vimal Rai movie inspired you or influenced you to produce Masaan or to write a Masaan? Like I said, Bandini has been a huge inspiration for me. The character of Kalyani has kind of weaved into two of my characters in the film Masaan. And that has clearly been our inspiration. And also, there was a point where we wanted to name the film as Le Chal Paar, from the seminal song that comes towards the end, which is also our kind of tribute to Bandini, but we couldn't, and we made the name as Masaan. Okay, आपके कुछ upcoming projects? Nothing. I'm just scouting for another project now. Let's see. I mean, nothing decided yet. Thank you. बाहर मीडिया बाइट लेगी एक्चुअली लाइक स्पॉन्सर्स आल्सो टू बी देयर मैं फिलहाल आपको फीफा अवार्ड दिया गया था आपके राइटिंग पे फिल्म के वजह, तो गेटिंग अ फीफा अवार्ड इज मोर गेटिंग अ विमल अवार्ड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. फिल्म फेयर जो कल मिला और विमल राय, नहीं आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों की अलग जगह है ज़िंदगी में. लेकिन व्हाट आई लाइक टू से कि विमल दा की फिल्मों के ऊपर ही शायद एक हमारा बचपन धीरे धीरे बड़ा हुआ है. तो आज उनके इस अवार्ड से सम्मानित होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए. मतलब इट्स आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. स्टेज पे मैम हम नहीं, क्या होता है कि आपको बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं और वो बार बार दे टेक यू बैक, द पार्ट ऑफ योर मेमोरी और नॉस्टैल्जिया. मेरे लिए ये सारी फिल्में, और मुझे एक एक चीज़ याद है कि ये फिल्म डाइनिंग टेबल के पास बैठ के देखी थी. यह फिल्म जब बैठी थी, हमारा टीवी तब तक ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गया था. कहाँ कैसे हर फिल्म में, बंदनी में जब वो गाना आता है कि अब के बरस पेश भैया को बाबुल, 7 साल की एज पे भी मुझे समझ में आ गया था. शायद वो एक अजीब सा कनेक्शन था उनकी फिल्मों के साथ. या सुजाता फिल्म देखें, वहाँ पे अनटचेबल्स के ऊपर, मतलब लोअर कास्ट के ऊपर जो उन्होंने बनाई फिल्म, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम बचपन का बीता है इन्हीं सब फिल्मों को देख के समझने की कोशिश में. और आज जो भी कुछ शायद रिश्तों की समझ है, या थोड़ी बहुत अगर मुझे लगता है लाइफ की समझ है, शायद यहीं से आ रही है. हाँ सर, हम जानना चाहेंगे विमल रॉय जो है आपकी लाइफ में कितने अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है. सबसे पहले बचपन में जो फिल्में देखी हैं जिनका सबसे ज़्यादा असर है वो विमल दा की ही फिल्में हैं.
वो आप बंदिनी बोल लें, आप 2 बीघा ज़मीन बोल लें, आप मधुमती बोल लें, आप उनकी परिणीता बोल लें, परख बोल लें, ये सारी फिल्में हैं जो बचपन में हम लोग बहुत चाव से देखते थे और उनका असर शायद उस समय उतना नहीं पता चलता था। 2 बीघा ज़मीन का तो बहुत पता चला था और वो फिल्में आज तक रेलेवेंट हैं। ये उन फिल्मों की सबसे बड़ी सक्सेस है कि आज तक वो लोग उनको देखते हैं और अभी भी रिलेट करते हैं। मसान में एज ए स्क्रीन राइटर काम किए, काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आए हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मसान के बारे में मैं यही कहूँगा कि मैंने जो बिमल दा से और ग्रेट्स गुरुदत्त साहब से और उस समय के जितने ग्रेट्स थे, राज कपूर साहब, उनसे यही सीखा और जो सीखा वो कोशिश किया फिल्म में लाने का कि ईमानदारी रखो कहानी से, लोगों से, जिन लोगों पे कहानी है, और बस बाकी सब अच्छा होगा। जिससे हम अपना गॉड मानते थे, जिससे हम इन्फ्लुएंस होते थे, आज उनके फोटो में अवार्ड एज एन अवार्ड मिल रहे थे, कितनी खुशी है, कितनी खुशी है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और विश्वास करना मुश्किल है थोड़ा सा कि ये हो रहा है हमारे साथ। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सपना है, पता नहीं सच लगेगा, शायद कुछ दिनों में एहसास होगा। मानना मतलब वही है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा लकी हैं हम और बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार है जो कि यहाँ तक लाया है, क्योंकि अपने अंदर उतनी काबिलियत है मुझे नहीं लगता है, लोगों के प्यार में उतनी काबिलियत है। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके? अपकमिंग जैसे कि अभी एक जुबान नाम से फिल्म आ रही है, उसमें गाने लिखे हैं। फिर रमन राघव एक फिल्म आ रही है अनुराग कश्यप की, उसमें भी गाने लिखे हैं। और एक फिल्म लिख रहा हूँ जो पता नहीं कब बनेगी, लेकिन लिख रहा हूँ, तो चल रहा है धीरे धीरे सब थोड़ा थोड़ा।